بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں سبھی محبان قرآن اور قرآن سیکھنے والے بھائی بہنوں کا استقبال کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان القرآن حی لا یموت، ان القرآن حی لا یموت، تاکید ہے، یعنی بے شک قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن جاوید کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، لا یموت، یہ کتاب کبھی مر نہیں سکتی۔ ان القرآن کلام خدا، یعنی قرآن کلام خدا، حی زندہ ہے، جاوید ہے، لا یموت نہیں مرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی کلام خدا نہ مرتا ہے نہ مرنے دیتا ہے، بلکہ کلام خدا، قرآن خدا زندہ بھی ہے اور انسان کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ ان القرآن حی لا یموت، یعنی بتحقیق بے شک قرآن زندہ ہے، کلام خدا زندہ ہے اور زندگی کی علامت ہے اور زندگی بخشتا ہے، لا یموت، نہ مرتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ قرآن سیکھیے، قرآن زندہ ہے، آپ بھی زندہ رہیں گے، آپ کو بھی زندہ رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی ہاں، قرآن نور ہے۔ آج ہم بیان کریں گے وہ حرف، بلکہ وہ الفابیٹس، وہ حروف کہ جو کبھی کبھی نہیں پڑھے جاتے ہیں اور کبھی پڑھے جاتے ہیں۔ جی، پہلی قسم یہ ہے کہ جب بھی کوئی حرف ہو، سمجھ لیجئے کوئی بھی الفابیٹ ہو اور اس کے اوپر تنوین فتحہ ہو، جی ہاں، ان یعنی اس کی آواز ہے تنوین فتحہ کی، ان ہو، اور اس کے بعد اگر الف ہو تو یہ الف آپ جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آپ کو بتائیں گے کب پڑھ سکتے ہیں اور کب جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ جب بھی اس الف کے شروع میں، یعنی جب بھی الف کے شروع میں تنوین فتحہ یعنی دو زبر جو اس کو اردو میں کہتے ہیں وہ آ جائے، اور یہاں پر اگر آپ اس کے بعد کچھ اور بھی حرف ہو، فرض کیجئے واو ہے اور اس کے اوپر فتح ہے، لام ہے، کچھ بھی ہو، اور اس طریقے سے آ جائے الف سے پہلے تنوین فتحہ ہو اور یہ الف ساکن ہو، الف کو آپ جو ہے جب وصل کریں گے اس حرف کو ادھر سے تو آپ نہیں پڑھ سکتے الف کو، لیکن جب یہاں پر رکیں گے، اسٹاپ ہوں گے، یہاں پر آپ جو ہے وہ سانس لیں گے تو یہاں پر اس الف کو الف مد پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، اور الف مد آپ کو پتہ ہی ہے اس کی یہ آواز ہے، الف مد کی آواز ایسے ہے، یعنی آپ جو ہے اس کو الف کو کھینچیں گے، کب؟ جب آپ رکیں گے۔ تو پتہ یہ چلا آج پہلا فارمولا، الف، پہلا قاعدہ، الف سے پہلے اگر تنوین فتحہ ہے یعنی دو زبر ہے اور آپ اگر نہیں رک رہے ہیں بلکہ اس کو پڑھ رہے ہیں ملا کر، اس کو عربی میں بولتے ہیں وصل کر رہے ہیں، ان اصطلاحات کو سیکھ لیجئے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے۔ جب اس حرف کو یہاں سے وصل کریں گے تو یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر اسٹاپ کریں گے تو پڑھا جائے گا، پھر یعنی مد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو غور سے دیکھیے گا۔ سورہ نوح کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدْ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کاف سے، یہ کاف ہے، یہ سے ہے 3 نقطہ والا، اور یہ یا ہے 2 نقطے والا، اور یہ رے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر 2 فتحہ لگایا، یعنی تنوین فتحہ، 2 زبر جس کو اردو میں بولتے ہیں۔ جی ہاں، اب الف آ گیا اور اس کے بعد وا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
अब मुझे ये बताइए वला तज़ीद जैसे कुरान में है वला तज़ीद, तो इसको छोड़िए, बहरहाल यहाँ जो है वो हमारी बहस है ये इस जगह पर काफ के ऊपर बच्चों, ताकि हम पढ़ना भी सीख लें धीरे धीरे कुरान की इन आयतों को और जुमलों को। काफ के ऊपर फतहा है, फे के ऊपर कसरा है, ठीक है, और या साकिन है, तो क्या पढ़ेंगे का सी, और ये रे और अलिफ है, ठीक है, रा, और रा के ऊपर तनवीन फतहा है कसीरन। अब जब यहाँ वाव से मिलाएंगे कसीरन वला तज़ीद, देखा अलिफ नहीं पढ़ रहा हूं मैं, फिर दोबारा सुनिए गौर से, कसीरन वला तज़ीद, आपने इस अलिफ को नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम सांस लेना चाहते हैं, फर्ज कीजिए कसीर कह के हम रुक जाना चाहते हैं, वक़द अज़ल्लु कसीर कुरान की जो आयत है, यहाँ पर हमारी सांस नहीं खींच रही है, नहीं ले पा रहे हैं, या रुकना पड़ेगा जो भी कुछ है, और हम रुकना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से पढ़ेंगे, कसीरा, कसीरा कह के आप रुकेंगे, यानी क्या मतलब, यानी अलिफ है और अलिफ के ऊपर जैसे मद है, कसीरा ये कहेंगे इस जगह पर। जी हाँ, एक दो मिसाल और भी हम दे देते हैं। फर्ज कीजिए कुरान का ये जुमला है, कुरान की मिसाल है, काफ के ऊपर फतहा है, का और लाम है यहाँ तक, और या है, लाम पे कसरा है, कली, और फिर लाम है और उसके ऊपर तनवीन फतहा है और अलिफ है। अब ये मीम है और यहाँ पर अलिफ है, मा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, कलीलम मा, कलीलम मा। लेकिन अगर यानी ये अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है, कलीलम यानी इस लाम की तनवीन को मीम से हम मिला दे रहे हैं, और यहाँ पर अलिफ जो है वो साइलेंट हो रहा है, कब, जब वसल कर रहे हैं, यानी मिला दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्टॉप हम करेंगे, यहाँ पर सांस लेंगे और रुक जाएंगे कलीला कह के, तो अलिफ को मत पढ़ेंगे, कलीला, फिर माँ को अलग से पढ़ेंगे, कलीला। फिर मैं एक जो है वो जुमला लिखता हूँ ताकि हमारे बच्चे जो है वो मिसालों को आसानी के साथ समझ जाएं। मिसाल के तौर पर ये मिसाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, काफ के ऊपर फत है और ये दाल है, दाल के ऊपर फतहा है, का दाल पे कसरा हम देते हैं, का दी इस तरीके से, और या साकिन है, तो का दी, रे के ऊपर तनवीन फतहा है, तो कदीरौं, ठीक है, वला तकूनु, या जो भी कुछ है। यहाँ पर जो शाहिद मिसाल है हमारी, ये रा है, रा के ऊपर तनवीन है और रा के बाद एक अलिफ है। अगर इस जगह पर आप नहीं रुकेंगे और रा को वाव से मिलाएंगे तो आप यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ सकते, अलिफ साइलेंट रहेगा, कदीरौं वला तकूनु, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर रुक जाते हैं रा के ऊपर, आप यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं और फिर अलग पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर सांस लेकर और वस्ल नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, कदीरा, कदीरा वला तकूनु, ठीक है। इस तरीके से जो है वो पहली बात हम सीख गए हैं, क्या है, लिख लीजिए इशारा और किनाया में, कि कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर तनवीन फतहा हो और उसके बाद अलिफ हो, तो ये अलिफ वस्ल करते वक्त नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर वक्फ करेंगे, वक्फ, तो जी हाँ पढ़ा जाएगा ये अलिफ। ये पहला कानून हो गया। दूसरा, जी हाँ, दूसरा जो कायदा है वो ये है कि अलीफ वस्ल या हमज़ा वस्ल, बेहतर यही है अरबी में। अब आप धीरे धीरे कुरान के स्टूडेंट हैं, अरबी इस्तिलाहात में बोलिए, क्या बोलिए, हमज़ा वस्ल। हमज़ा वस्ल क्या चीज़ है? जी हाँ, सवाल, हमज़ा वस्ल है क्या चीज़? देखिए दो चीज़ें, एक हमज़ा वस्ल का मतलब यह है वो अलिफ जिसके ऊपर ज़ेर, ज़बर, या अरबी में हम कहते हैं कसरा, फतहा, ज़म्मा कुछ ना हो, तनवीन फतहा, तनवीन कसरा, तनवीन ज़म्मा ये भी ना हो। जी हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे,
हमज़ा वस्ल बोलेंगे, याद रखिएगा। लेकिन हमज़ा वस्ल की पहली शर्त ये हुई कि वो अलिफ कि जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो एक लफ्ज़ में, यानी फतहा, कसरा, ज़म्मा, तनवीन कसरा, तनवीन फतहा, तनवीन ज़म्मा न हो उसके ऊपर, एक शर्त। दूसरी शर्त, दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, उस अलिफ के बाद जो भी हर्फ आए वो या तो साकिन हो या तशदीद हो। हमज़ा वस्ल को समझाने के लिए उसके सर के ऊपर एक स्वाद का शोशा लगा होता है, ठीक है। वस्ल वाव लगाएंगे तो वो ज़म्मा हो जाएगा उस अलिफ के ऊपर, लिहाजा समझ में नहीं आएगा कि ये हमज़ा वस्ल है या अलिफ पे ज़म्मा है, तो ऊ हो जाएगा। लिहाजा ये स्वाद का ये शोशा लगा होता है। अक्सर कुरान में आप देखेंगे इस तरीके से मिल जाएगी अलामत ये, लेकिन बहुत से कुरान में ये अलामत नहीं भी है। तो हम कैसे समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि इसके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश ना हो, यानी उर्दू में हम बोल रहे हैं कसरा फतह ज़म्मा ना हो, तनवीन फतह कसरा ज़म्मा ना हो, और उसके बाद वाला जो हर्फ है वो साकिन हो और तशदीद हो, तो इसको हमज़ा वस्ल। और इसका यूज़ और इस्तेमाल कुरान मजीद में बहुत ही ज़्यादा है। हमज़ा वस्ल को कब पढ़ेंगे और कब नहीं पढ़ेंगे, गौर से सुनिए। अगर ये हमज़ा वस्ल दो कलमे के दरमियान आए, फर्ज कीजिए दो कलमा है, इसके दरमियान में आए, क्या मतलब, कलमा से मतलब सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में आ जाए, या एक कलाम है, कलाम के मतलब बड़ा सा कलाम है, उसके बीच में आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त ये हमज़ा वस्ल पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, इसके कायदे कानून है पढ़ने के। क्या कायदे कानून है कि इसको आ पढ़ूं, ई पढ़ूं या ऊ पढ़ूं, है ना, यानी इसके ऊपर फतहा लगाकर हम आ की आवाज़ निकालें, या कसरा लगाकर जो है वो ई की आवाज़, या फिर ज़म्मा के साथ ऊ की आवाज़। लिहाजा उसका एक ख़ास कायदा है, हम बयान करेंगे, जहन में ज़रूर रखिएगा। बहुत आसान है, इजी है। देखिए मिसाल हम देते हैं और मिसालों के दरमियान में आप समझेंगे। लिहाजा दूसरा जो आज किस्म है हमज़ा वस्ल है। हमज़ा वस्ल किसको कहते हैं, जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश तनवीन वगैरह कुछ ना हो, यानी उससे खाली हो हरकत से, और उसके बाद वाला हर्फ पे जो है वो साकिन हो या तशदीद हो, और उसके ऊपर एक स्वाद की अलामत भी अक्सर कुरान में मिल जाएगा। राइटिंग के ऊपर होता है किस कुरान में है और किस कुरान में नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ये हमने लिखा है मीम पे कसरा है और नून साकिन है, या नून पे फतह है, ठीक है। क्या हुआ, मी ना, मीम पे कसरा है मी और नून पे फतह है ना। जी हाँ, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए किस तरीके से, जी हमने लिखा यहाँ पर मीम पे कसरा मी, नून पे फतह ना। अब ये नून के बाद ये हमज़ा वस्ल है, यहाँ पर देखा हमज़ा वस्ल है, और इस हमज़ा वस्ल के बाद देखिए इसके ऊपर ये अलामत है। हमज़ा वस्ल के बाद हमने कहा था हमज़ा वस्ल वो है कि जिसके बाद या तो एक हर्फ हो साकिन या तशदीद। ये लाम साकिन है, देखिए ये लाम साकिन है, लाम के ऊपर फतहा कसरा ज़म्मा कुछ नहीं है। लिहाजा इस लाम से पहले जो ये अलिफ आ गया, अब इसको आप जो है हमज़ा वस्ल कहेंगे, और इसको आप चूंकि बीच में आ गया, देखिए मिन एक अलग है कलमा, और अर्ज, मिन के माने से, अर्ज के माने ज़मीन मिट्टी, तो दोनों अलग है, इनके दरमियान में यह आ गया। लिहाजा आप नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे, मिनल अर्ज़े, मिनल अर्ज़े, यानी नून को और लाम को मिला देंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, अलिफ को आप जो है वो नहीं पढ़ेंगे, यानी हमज़ा वस्ल को इस टाइम नहीं पढ़ सकते आप। क्यों, इसलिए कि दो सेंटेंस के बीच में आया है और नून को आप लाम से मिला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ स्टॉप करेंगे,
या फर्ज कीजिए मीन नहीं है, मीन अगर नहीं है तो क्या हुआ, फिर वो सेंटेंस के शुरू में आ गया, फिर वो एकदम इब्तिदा में आ गया। अब इब्तिदा में इसके ऊपर जेर ज़बर पेश कुछ तो है नहीं, लिहाजा हम कैसे पढ़ेंगे, उसकी बात जो है हम आगे बयान करेंगे। चलिए एक मिसाल और भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कुरान मजीद में एक जुमला आपको मिलेगा, मीम पे फतह है, मा और नून पे कसरा है। जी हाँ, और यहाँ पर ये ते है, दो नुक्ता है, समझ लीजिए ये दो नुक्ता है ता के ऊपर, लेकिन ता पर एक तशदीद है, एक क्या है, तशदीद है, और ता फतहा है, और ये बा है, बा पे भी फतहा है, ऐन पे भी फतहा है। जी हाँ, इसको मैं फ्रेश करके लिखूं तो ऐसे, ये ता हो गया, ता पे तशदीद है, फतहा है, ये बा हो गया, बा पे फतहा है, ये ऐन है, अगर आपको याद है ऐन के ऊपर फतहा है। जी हाँ, अब इसको मैं इस तरीके से देख रहे हैं आप, मनित्तबा, यानी नून ता से मिल रहा है, क्यों, इसलिए कि ये जो है वो हमज़े वस्ल है, ना तो इसके ऊपर फतहा है, ना कसरा है इसके नीचे, ना ज़म्मा है, ठीक है, दो कलमे के बीच में आ गया है। फिर इसके बाद जो कंडीशन थे, साकिन हो या तशदीद हो, तो इसके बीच में ये देखें अलामत तशदीद, लिहाजा इस वक्त आप जब मिला कर पढ़ेंगे मनित्तबा तो इस हमज़ा वस्ल को नहीं पढ़ सकते। तो आज जो है वो हरूफ नाख़ाना या कहिए साइलेंट हरूफ की दूसरी अलामत है हमज़ा वस्ल। हमज़ा वस्ल जब किसी भी दो जुमले के, दो कलमे के बीच में आ जाए और इसके बाद तशदीद हो या साकिन हो तो ये जो है पढ़ा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है, चूँकि एक दफ़ा पढ़ा जाएगा, हमने कहा था ये हर्फ, आज वो बहस चल रही है कि कभी पढ़ा जाएगा कभी नहीं पढ़ा जाएगा, कंडीशन के ऊपर है, कब पढ़ा जाएगा ये हमज़ा वस्ल, कब पढ़ा जाएगा। जी हाँ, इससे पहले हम बयान कर चुके, जब किसी भी कलमे के शुरू में, फर्ज कीजिए इसको हमने मिटा दिया, इसको मिटा दिया, अब इत्तबा है, यहाँ पर ये हमज़ा वस्ल है तो शुरू में आ गया, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जब इस तरीके से आया तो इसके ऊपर आप फतहा देंगे या कसरा देंगे या ज़म्मा देंगे। इस हमज़ा वस्ल को जब शुरू में आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए यहाँ पर लिखा है, ये हाँ है, मैं बहुत ही बच्चों की तरह लिख दूँ, ये मीम है बच्चों, ये यहाँ भी इसको मिटा दूँ ताकि लोगों को समझ में ना आए, कि समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये वाह है, ये लाम साकिन है, ये लाम है बच्चों, ठीक है, और ये हा है, हा हल्क से निकलने वाला, तो क्या है, वल, और ये हा मीम साकिन है, हम दाल पेश दू, वल हमदू। जी हाँ, यहाँ पर क्या आप पढ़ेंगे, वल हमदू, लेकिन हमने इस वाव को हज़्फ कर दिया, डिलीट कर दिया, महव कर दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि हुजूर ये बताइए आप इसको क्या पढ़ेंगे, अलहम्दो पढ़ेंगे, इलहम्दो पढ़ेंगे, उलहम्दो पढ़ेंगे? चूँकि आप लोग अलहम्द के इस सेंटेंस से वाकिफ़ हैं, कुरान मजीद का ये सूरा इतना फेमस है और नमाज में बार बार पढ़ते हैं, लिहाजा यहाँ आप समझ जाएंगे कि इसको अलहम्दो पढ़ेंगे सर। क्यों? इसलिए कि हमें आदत हो गई, मलाका हो गया ज़बान पे अलहम्दो। लेकिन मैं अब जो है जुमला ढूंढ के ला रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसको क्या पढ़ेंगे। जी हाँ, ये जुमला है, देखिए मैं बच्चों की तरह लिखूं या यूं कह दूं, बहुत साफ साफ लिख दूं। अलिफ है यानी हमज़ा वस्ल है, और ये काफ है, ता है, रा है और बा है, ठीक है जी। हमने पूरा जो है वो ज़ेर ज़बर पेश जिसको उर्दू में कहते हैं यानी हरकतें सब दे दी। ये हमज़ा वस्ल है, ये काफ है साकिन, ता पे फतहा है, रा पे फतहा है और बा पे फतहा है। तो यहाँ से पढ़ें,
तराबा। अब यहां से आप क्या पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही ना। जैसे यहाँ पर अल्हम्दो, हम इसको चूंकि याद है, हमेशा जानते हैं, फतह पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये हमजा वस्ल है, इसके ऊपर जो है वो ना ज़ेर है, ना ज़बर है, ना पेश है। अब बताइए आप इसको जो है वो क्या पढ़ेंगे। या दूसरी मिसाल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए इस तरीके से, ये हमजा वस्ल है, हमजा वस्ल की अलामत ये ज़म्मा नहीं है, हमजा वस्ल है, ये वाद है अगर आपको याद है, और ये रा है, रा पे कसरा है, और ये बा है, ठीक है। अब आप क्या पढ़ेंगे इसको, इस हमजा वस्ल को, इज़रिब पढ़ेंगे, उज़रुब पढ़ेंगे, अज़रिब पढ़ेंगे। अगर कायदा नहीं जानेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक जुमला मैं आपके सामने ला कर दे रहा हूं, इन जुमलों को गौर से देखिएगा। फर्ज कीजिए हमजा है या हमजा वस्ल जिसको हम कहते हैं, खा है, रा है और जीम है जी, रा पे ज़म्मा है। अब आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, इखरिज पढ़ेंगे या अखरज रुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप इसको। यानी इखरिज पढ़ेंगे या जो है वो अलिफ पे ज़म्मा देंगे, उखरुज पढ़ेंगे, या जो है इसके ऊपर फतहा देंगे, अखरुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप बताइए। यहाँ जो है वो हमजा वस्ल चूँकि कलमे के शुरू में आ गया है, लिहाजा इसको पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ना पड़ेगा इसकी आवाज़ या यूँ कह दूँ इसकी हरकत क्या होगी, ज़म्मा है, फतहा है या कसरा है। जी हाँ, इस ग्रामर को अगर आप समझ गए बहुत ही ईजी रहेगा। देखिए इसकी दो किस्म है बच्चों, दो किस्म है, इसकी दो किस्म है। जब यह हमजा शुरू में आ जाए तो हमको पढ़ना पड़ेगा, लिहाजा हम क्या पढ़ें। देखिए एक हम इसको फतहा पढ़ेंगे और एक इसको क्या पढ़ेंगे, ज़म्मा पढ़ेंगे, और एक मर्तबा कसरे के साथ पढ़ेंगे। ये तीनों तो सूरत हाल बन सकती है, एक फतहा के साथ यानी आ के साथ, एक ऊ के साथ, एक ई के साथ। अब समझना है कब हम हमजा के ऊपर फतहा लगाएंगे, कुरान में लिखा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। हो सकता है आपने अपने हाथ से लिख दिया हो, लेकिन कब तक लिखेंगे। और एक मर्तबा आपको जो है वो उसके ऊपर ज़म्मा लगाकर पढ़ना है और एक मर्तबा कसरा लगाकर। लेकिन फार्मूला क्या है, जी हाँ सुनिए। अगर हमजा वस्ल किसी भी कलमे के शुरू में आ जाए और हमजा वस्ल के बाद लाम आ जाए, सिर्फ लाम, तो आप उस हमजे के ऊपर फतहा लगाएंगे, बस ओनली लाम के लिए है ये। जैसे मिसाल अल, ये लाम है, ये हा है, ये मीम है, ये दाल, तो ये फतहा है, ये साकिन है। अल हम दू। एक मिसाल और देता हूँ, हमजा वस्ल जहाँ पर है, फ़र्ज़ कीजिए ये हमज़ा है, इससे पहले कुछ भी था, वाव था, फला था, और इसके बाद लाम है और लाम साकिन है, और यहाँ पर दाल है और यहाँ या है, ठीक है। तो आप अब मिसाल जो है वो तशदीद की देता हूँ। लाम के ऊपर तशदीद है, चूँकि हमने कहा था हमज़ा वस्ल वो है जो उसके बाद साकिन हो या तशदीद हो, लिहाजा अब लाम जो है वो तशदीद की मिसाल। तशदीद के मतलब डबल पढ़ना, यानी इस लाम को आप डबल मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा लाम, डबल एल, ठीक है। तो अब किस तरीके से लिखा है, ज़ाल पे कसरा है। अब आप क्या पढ़ेंगे इसको, इल्लज़ी पढ़ेंगे, उल्लज़ी पढ़ेंगे या अल्लज़ी पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको अल्लज़ी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि लाम के ऊपर तशदीद है, लिहाजा अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, साबित हो गया कि ये हमज़ा वस्ल है। लिहाजा हमने बयान किया हमज़ा वस्ल के बाद अगर लाम है तो इस हमजे को फतहा के साथ पढ़ना पड़ेगा, आ की आवाज़ के साथ, अल्लज़ी। ये बहस जो है यहाँ पर आ की ख़त्म हो गई। अब ऊ की बात है, देखिएगा, गौर कीजिएगा, और ई की बात है। अगर हमज़ा वस्ल कहीं भी आ जाए और हमज़ा वस्ल के बाद देखेंगे जो
जुमला है उस जुमले का तीसरा हर्फ क्या है, तीसरा हर्फ क्या है। थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत कीजिएगा। फर्ज कीजिए ये है वाद, ये हमज़ा वसल है या अलिफ है, जो भी इस टाइम कह सकते हैं। हमज़ा वसल है, वाद है, रा है, बे है, ठीक है। यहाँ पर रा पे कसरा है, बात समझ रहे हैं, रा पे कसरा है। इसी तरीके से तीसरा हर्फ को आप देखेंगे जहां भी आप कुरान में है, 1 2 3 यानी अलिफ वाद रा, तो ये रा तीसरा हो गया ना। तीसरा हर्फ देखेंगे, अगर तीसरा हर्फ मफ्तू है या मकसूर, क्या मतलब, यानी तीसरा हर्फ के ऊपर अगर कसरा है या ऊपर फतहा है, ठीक है। जैसे फिर मैं एक मिसाल दूं फतहा की, अलिफ, काफ, ता, जी हाँ, और ता के बाद जो है रा है, रा पे फतहा है, ठीक है, और बा पे फतहा है। तो यहां पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 यानी हमजा है, काफ है और ता तीसरा हर्फ है। तो तीसरा हर्फ के ऊपर फतहा है, लिहाजा अगर फतहा हो और कसरा हो तो इस सूरत में आप कसरा देंगे इसके नीचे, यानी इद्रिब और इक़्तरबा, इस तरीके से पढ़ेंगे। है हमज़ा वस्ल पे ज़म्मा कब लगाएंगे? जी हाँ, जब हमज़ा वस्ल के बाद, ये हमज़ा वस्ल है और उसके बाद यानी हमज़ा वस्ल को मिलाकर आप देखेंगे तीसरा हर्फ के ऊपर अगर ज़म्मा है, जैसे ये अलिफ, खा, रे पे ज़म्मा और ये जीम, तो इस वक्त आप अगर तीसरे हर्फ के ऊपर देखिए, ये हमजा है 1, हा है 2 और रा है तीसरा हर्फ, तीसरा हर्फ के ऊपर अगर ज़म्मा है तो आप इसके ऊपर भी ज़म्मा देंगे। उखरुज, देखिए उखरुज, ये पढ़ने का इसका तरीका है। फर्ज कीजिए हमजा है, ता है, काफ है, वाव है और ये ता है, यहाँ से यहाँ तक ये ता है और यहाँ से या काफ है, मैं मिला देता हूँ, और ता के ऊपर तशदीद है, बात समझ रहे हैं, ता के ऊपर तशदीद है और ये काफ है, काफ के ऊपर ज़म्मा है। देखिए आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ता के ऊपर फतह है, क्या पढ़ेंगे आप, हमजा है, ता है, ता के ऊपर फतहा है और तशदीद भी है और काफ है, उसके बाद काफ को छोड़ दीजिए इस टाइम, आप इसको क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, हम देखेंगे, आपसे कहा था हम देखेंगे हमज़ा वस्ल अगर शुरू में आए तो तीसरा हर्फ क्या है। यहाँ बताइए तीसरा हर्फ क्या है मेरे सभी कुरान के क्लास में शिरकत करने वालों, तीसरा हर्फ यहाँ पर क्या है? वो जो तीसरा हर्फ है उसी को आप उसके मुताबिक पढ़ेंगे। अगर उसके ऊपर फतहा है या नीचे कसरा है तो उस हमज़ा वस्ल को आप क्या देंगे? कसरा देंगे। नहीं, अगर तीसरा हर्फ ज़म्मा है तो उसको ज़म्मा देंगे, अगर हमज़ा के बाद लाम है तो उसको जो है फतहा देंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, मैं आपको समझाऊं। हमने कहा था हमेशा, और आप जानते भी हैं कि तशदीद जहां भी आ जाए डबल होता है। यहाँ पर ता डबल है, मैं इसको काट काट कर दिखा रहा हूं आपको। ये हमज़ा है, ये एक ता है पहला वाला, ये फिर दूसरा वाला ता है, इसके ऊपर फतहा है, इसके ऊपर साकिन है, इसके ऊपर फतहा है, ठीक है, तभी तो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर काफ है, ये जो है काफ पे पेश है, ये वाव है, ये हकीकत में ये इस तरीके से लिखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जो है वो तशदीद है। जब आप समझेंगे बख्श बख्श करके तोड़ तोड़ के तभी समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं 1 2 3, अरे बाप, तीसरा जो हर्फ है वो तो ता है और ता के ऊपर फतहा है। जी हाँ, तो हमने कहा था ता के ऊपर अगर फतहा हो यानी तीसरे हर्फ के ऊपर या कसरा हो, नीचे हो, तो हमको अलिफ के नीचे कसरा लगाना है। तो यहाँ पर हम हमज़ा वस्ल के नीचे कसरा लगाकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इत्ताकू, इत्ताकू। जी हाँ, ये ऊपर वाला आप पढ़िए, ये ऊपर वाला हमज़ा वस्ल के नीचे कसरा लगाएंगे, आप पढ़ेंगे इत्ताकू, इत्ताकू। देखिए इक़्तरबा,
آپ یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہم بیان کریں گے اگلے